क्या ये गायनेकोलॉजी और आईवीएफ का जो एक इमोशनल प्रेशर है वो लोग समझ पाते भी हैं कि नहीं? इनफर्टिलिटी पेशेंट्स तो समझते हैं, बट जो रूटीन गायनिक पेशेंट्स होते हैं समटाइम नहीं समझते. क्या सही में पेशेंट्स कभी कभी डॉक्टर्स को इमोशनली अंडर एस्टिमेट कर देते हैं? समटाइम यस, डॉक्टर्स आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, दे आर आल्सो इमोशनल. तो अगर हमें आज के यंग कपल्स को एक ब्रूटली ऑनेस्ट एडवाइस अगर कोई देनी होगी तो हम क्या देंगे? सो दे शुड बी अवेयर ऑफ देयर. हर शहर में कुछ ऐसे डॉक्टर्स ज़रूर होते हैं जो सिर्फ पेशेंट्स को ट्रीट ही नहीं करते, उनकी ज़िंदगी बदलते हैं. आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं. अ रिनोन्ड गायनेकोलॉजिस्ट, an IVF specialist, educator, speaker, and the co-founder and director of Jeevan Jyoti Hospital in Prayagraj, Dr. Vandana Bansal. For years, she has not only helped bring thousands of lives into this world, but has also worked relentlessly towards educating young doctors, empowering women, and modernizing the conversations around fertility, healthcare, and motherhood in India. From operation theatres to international medical platforms, from deeply emotional patient journeys to leadership in healthcare. Thank you so much, Dr. Mansal, for joining us today. It's a pleasure having you here. Thanks. I am very happy to be here today to discuss such an important global topic, that is infertility. Infertility is very close to my heart, and I have practiced infertility for the last 32 years. Wow. And doing IVF for the last 27 years. Amazing. So I have seen fertility pain from very close, and I know that still the awareness is not that much as it should be, jabki science has advanced so much. Correct. But they need to know exact truth about the fertility treatment and how to get the right fertility treatment. Wonderful. That's a beautiful thought. Before we get into the whole discussion around IVF, healthcare systems or medicine, मैं एक ऐसे ह्यूमन एंगल से शुरुआत करना चाहूँगी, एक ऐसे सवाल से जो पर्सनली मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. क्या सही में पेशेंट्स कभी कभी डॉक्टर्स को इमोशनली अंडर एस्टिमेट कर देते हैं? Sometimes yes, doctors are also human being and they are also emotional, and but you know with time they learn to balance their emotions, but still deep inside they are touched by the pain of their patients every time, and sometimes they carry it home. इतने सालों की प्रैक्टिस में क्या कोई ऐसा मोमेंट रहा है या कोई ऐसी पेशेंट जर्नी रही हो जो आपके साथ आज तक रह गई हो, जिसने आपको इमोशनली और पर्सनली दोनों तरह से हमेशा के लिए चेंज कर दिया हो? There are many stories, not one. I will share few of mine. You know, the patients, the faith is the most important thing. And I had a patient who had come from Mumbai. She had 3 failed IVF cycles in Mumbai. And then she conceived, and she went to Mumbai and she aborted in the 4th month. Oh. But then she came again. You know, the next time she came again. And then again she conceived, and she stayed here for 9 months. She was not ready to go. I was telling her to go to the top doctors in Mumbai, you know. Right. But she didn't go. And when she had a baby, I still remember the joy she and her husband had. This is one moment. And I have other moments also. And I have realized that even one embryo can make a difference. That's true. So patient have multiple eggs, they don't conceive. You think this patient will not conceive. Oh. She conceives Wow. with the bad embryos. And patient with the very good embryo and very good everything, she will not. So it is a journey, and I have also evolved as a person, and I remember many such stories which is still close to my heart. I cannot forget them. In fact, I was thinking of writing a book about the different patients and what I have learned from them and how their stories affect me for making me a person which I am today. Beautiful. In fact, I would really look forward to you write that book, and I would love to read it for sure. I'm sure it's a very emotional field that you're into, besides being a very technical one. But
एक हमारा ऑब्जर्वेशन है कि जब लोग डॉक्टर्स को देखते हैं तो उनको लगता है कि डॉक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इमोशनली, राइट, बट ऐसा वो रियलिटी में शायद होता नहीं है, रियलिटी बहुत अलग होती है। तो क्या कभी ऐसा कोई एक इंस्टेंस रहा है जहां आप हॉस्पिटल से बहुत इमोशनली डिस्टर्ब होके घर के लिए निकले हो? Yes, that also happened many a times. And when you have put your all the effort and everything was good, and yet the patient has not conceived, so that pain you carry, and maybe if it is your son's birthday or grandson's birthday, but you still carry and it impacts the family. But if my whole team is very emotional, and sometimes you know what happens when one of my patient, when she did not conceive in the first attempt, automatically you know the tear comes in my eyes. So she was consoling me instead of I was consoling her, and she gave me even one card. Don't worry, doctor, I will come again and I know I will conceive. And you know, she conceived in the second attempt. Still that card I have, you know, saved, and it is so touching. You know, patient can feel your empathy, you know, because it's a faith, it's a connecting faith that heals the patient, not only the medical treatment. So they feel your bond, and that is what, you know, encourages you to work. And my whole team is like that. My counselor, though, she is even one better than me. She will have all the tears in her eyes when the patient will not conceive, and we have to console each other. But when the patient consoles you, Right. that is the best thing that can, you know, that is what we earn. I Right. think that Right. patient understand that I am also understanding their pain. Right. That is the best thing that can happen. करेक्ट। सो बीइंग ऑन द ऑपोजिट साइड, आई मीन ये थॉट मेरे अंदर हमेशा रहा है कि क्या ये गायनाकोलॉजी और आईवीएफ का जो एक इमोशनल प्रेशर है वो लोग एक्चुअली समझ पाते भी हैं कि नहीं? Sometime yes, some infertility patients तो समझते हैं, बट जो रूटीन गायनिक पेशेंट्स होते हैं समटाइम नहीं समझते. बट मुझे ये लगता है कि अगर आप ये प्रोफेशन सिर्फ प्रोफेशन के तौर पे ना करें, और अगर आप पैशन आपका है इसमें, तो इट डजेंट मैटर वेदर कोई पीपल अंडरस्टैंड्स मी और दे डोंट अंडरस्टैंड मी, एज लॉन्ग एट हीलिंग द पेशेंट मेक्स मी हैप्पी, आई एम हैप्पी, एंड इट डजेंट बॉदर मी whether they understand it or they don't understand it. It is my fulfillment, you know, my happiness. I know that I have treated honestly. So that thing is there. So it hardly matters. Not only in my profession, in every profession, in every relationship, this is always there. The people may not understand your sacrifice. Because for every successful person, the family has to sacrifice. Life, personal life has to be sacrificed. But then only you can achieve something. That's beautifully said. आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से अर्बन इंडिया में खासकर फर्टिलिटी इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं? Yeah, there are a lot of, you know, reasons. The most important is the lifestyle factors. You know, our lifestyle has changed dramatically, and we are all eating processed food, and we are have a hectic lifestyle. We are sleeping late, we are eating late, and we are less of physical exercise. All the time we are on either computer or on mobiles. There's a lot of stress, and उसके ऊपर भी environmental pollution. You know, AQI क्या चल रहा है? क्या हम साफ हवा तो ले ही नहीं रहे हम तो? Right. क्या हम साफ पानी भी नहीं पी रहे? एंड उसके बाद एक नई और भी चीज़ है कि रिलेशनशिप में मैंने आजकल देखा है, एक तो डिले मैरिज तो हो ही रही है बिकॉज ऑफ द फीमेल आर कैरियर ओरिएंटेड दीज डेज. दैट इज़ गुड ऑल्सो, बट देन द रिप्रोडक्टिव जो एबिलिटी होती है वो एक एज के बाद कम होती है. तो लेट मैरिज, हैविंग ए लेट चिल्ड्रेन, डिलेइंग चिल्ड्रेन, नॉट गेटिंग मैरिड, नॉट गेटिंग अ राइट पार्टनर, एंड ऑफ कोर्स द alcohol and drinking, and that even the tobacco, cigarette smoking is very common in the urban area. Right. And living in the separate cities. आजकल ये नया ट्रेंड है कि हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग रहते हैं, कभी वीकेंड में मिलते हैं. कोई लिखना पड़ता है इसलिए कि वेदर दे आर लिविंग टुगेदर और नॉट, एंड इफ लिविंग टुगेदर तो वो भाई फर्टाइल पीरियड में साथ हैं कि नहीं. Right. अभी अगर गुड़गांव में लीजिए तो कोई लोग गुड़गांव में रहते हैं, नोएडा में काम करते हैं. सो दे रीच
they have hardly any time, you know. And if you Right. talk of the lower class people, they have only one room. They don't have time to get intimate. So these are the new problems in the urban India, which I come to when you take detailed history. One of my patient was not able to conceive. So then I found कि उसके पास एक ही रूम है बेचारे के पास, और वो बच्चे भी उसी में रहते हैं. They don't have time for each other. Right. That is the, these are the all problems of urban India, I will say. एक्चुअली इनफैक्ट एक वर्किंग प्रोफेशनल होने के नाते ये खुद मैंने कई बार लोगों से सुना है कि करियर प्रायोरिटीज़ की वजह से पेरेंटहुड बहुत डिले हो जाता है. तो आपके हिसाब से ये किस हद तक ये चीज़ सही है और इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? देखिए, दिस इज़ ए जेन्युइन प्रॉब्लम आजकल, क्योंकि आजकल फीमेल्स आर कैरियर ओरिएंटेड एंड दे शुड बी, बिकॉज दे आर डूइंग इनक्रेडिबल at every field, you know, That's these true. days. So we don't want to stop them. But side by side, they have to understand that biology doesn't understand the career goals and all this. So biological clock तो अपना चलता है, और वो 30 के बाद कम हो जाता है, और 35 के बाद ड्रास्टिकली कम हो जाता है. So the career and the reproductive health and the family planning has to go side by side. Along with the career, they have to understand this biological clock, because अभी साइंस कितना भी एडवांस हो गया है, ये जर्म सेल का एजिंग का कोई रिवर्सल नहीं है. एजिंग oocytes का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एंड एग्जॉस्शन के बाद भी कोई ट्रीटमेंट अभी तो नहीं है. लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव है. उनको, इफ़ दे हैव टू डिले द मैरिज और द चाइल्ड बियरिंग टू मच, लाइक दे नो दैट आफ्टर 30 और 35 तक नहीं हो पाएगा, they can't have children, so then they should freeze their eggs. So it is a very good possibility these days, and now with the advancement in the freezing technology, it is very important to freeze the eggs. And I will also say to the male also to freeze their sperm, because you don't know what can happen tomorrow. Tomorrow they can have an injury and they can lose all the eggs, they can have an operation, they can lose all the sperms. So for both the partners, I will say it is not especially for the females. Females के साथ तो एजिंग होती है, इसलिए चला जाता है. मेल्स का और ट्रामा और बाकी चीज़ों से जा सकता है. तो प्लीज़ freeze your germ cells if you are crossing the line of biological clock and of reproductive medicine. So if, and better to freeze your eggs before 30. 30 साल के पहले अगर आप एग्स को फ्रीज कर लेते तो आप 45 ईयर्स के एज में भी उस अंडों की मदद से easily you can enjoy your parenthood. Right. Even maybe for the आप फर्स्ट हो सकता है आपने नेचुरल कंसीव कर लिया, तो दिस विल हेल्प यू इन हैविंग अ सेकेंड चाइल्ड, क्योंकि कई लोग तो आजकल एक बच्चा कर लेते हैं, दूसरा फिर सोचते हैं तो बहुत लेट हो जाता है. सो इफ़ यू वांट योर बायोलॉजिकल चाइल्ड एंड यू वांट योर कैरियर एवरीथिंग, तो दिस इज़ ए वेरी गुड अल्टरनेटिव, बट दिस शुड नॉट डिले द मैरिज. ये नहीं सोचना है कि हमारे पास तो हमने तो फ्रीज कर लिया तो अब शादी करने से क्या फ़ायदा. Right. ये भी नहीं होना चाहिए. Correct. सो यू हैव टू कीप ए बैलेंस between your reproductive health and your career and your family. तो अगर हमें आज के यंग कपल्स को एक ब्रूटली ऑनेस्ट एडवाइस अगर कोई देनी होगी तो हम क्या देंगे? So they should be aware of their reproductive health and most important lifestyle. बचपन से ही पेरेंट्स को बचपन में ये लाइफ स्टाइल हैबिट्स डालनी पड़ेंगी, क्योंकि जो हमारा पीक बोन मास भी होता है वो 30 ईयर्स तक बन जाता है. हेल्दी हैबिट्स आर इनकल्टेटेड इन द चाइल्डहुड. तो 30 साल तक अगर आप नहीं सुधरे हैं, सो दैट इज़ द डेडलाइन, आप सुधर जाइए, क्योंकि 30 साल के बाद 30 साल तक तो आप कुछ भी इंसल्ट करते हैं बॉडी की, बॉडी उसको बेचारा कंपेंसेट करता रहता है. 30 साल के बाद वो कम हो जाती है. तो प्लीज़ रेस्पेक्ट योर बॉडी, लिसन टू योर बॉडी. बॉडी खुद बताती है. टेक केयर ऑफ योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ and along with your mental, physical, spiritual and all kinds of health, please take care of your reproductive health also. ग्रेट. डॉक्टर, आपने मल्टीपल जनरेशन्स के पेशेंट्स को आई एम श्योर देखा है. आज के टाइम में फर्टिलिटी ट्रेंड्स को लेके सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? फर्टिलिटी ट्रेंड्स आजकल तो सोशल मीडिया के कारण काफ़ी इजी हो गया है, एंड पीपल हैव चेंज्ड. पहले जो मेल्स नहीं आते थे ट्रीटमेंट के लिए, अब वो आने लगे हैं, बट अभी भी
अवेयरनेस कम है और वी हैव टू इंक्रीज इट. जैसा आपने ट्रेंड बोला वही लेट आते हैं और IVF के लिए तो बिल्कुल ही लेट आते हैं. जब वो मेंटली और फाइनेंशियली एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं तब आते हैं. तो वो बेचारे इमोशनली भी इतने टूटे होते हैं और फाइनेंस भी नहीं होता उनके पास. तो आपको IVF शुड नॉट बी ए लास्ट रिसॉर्ट. इट इज़ ए one very important resort to complete your family. So even IVF should be done at the right age. Right. Don't come to me at the age of 40 years. I can't help you with your own eggs. So if you want your biological child, even do IVF early. Maybe your second child you will have without IVF. So how does it matter? Many of my patients, they conceive through IVF in the first cycle, and in the next cycle they conceive on their own. Right. But complete your family at time. Not good to having a child at 45 years. And child को भी तो parenthood मिलना चाहिए. तो आपको सिर्फ बच्चे को पैदा नहीं करना है. You have to be there for her or him. At least उसके जो years होते हैं 25 years, उसकी जो development के years होते हैं, you have to be not only there, you have to be healthy. That's true. That's true. So that is why my advice is कि parenthood को आप समय रहते complete करिए. तो क्या आपको लगता है कि इंडिया में IVF को आज भी बहुत ही अननेसेसरली जज किया जाता है? नॉट रियली. अभी आजकल तो बिल्कुल चेंज हो गया है पैटर्न विथ IVF अवेलेबल एवरीवेयर नाउ एंड इट इज़ नॉट कॉस्टली ऑल्सो. इफ़ यू टॉक, एक घुटने रिप्लेसमेंट में 1.5 से 2 लाख लगते हैं. आपका 2 लाख में एक नया लाइफ आ जाता है. सो IVF इज़ नॉट एट ऑल कॉस्टली. इट इज़ वेरी चीप इन इंडिया. तभी आपको मेडिकल टूरिज्म इतना होता था और होता है. बाहर से लोग आते हैं बिकॉज द सेम थिंग, बट द IVF इज़ चीप इन इंडिया एंड वी हैव द सेम सक्सेस रेट एज ऑल ओवर द वर्ल्ड. लेकिन हमने एक चीज़ देखी है कि लोग IVF को आज भी बहुत ही अननेचुरल समझते हैं. साथ में फैमिलीज़ का जो कांस्टेंट प्रेशर होता है उसकी वजह से मेंटल हेल्थ अलग अफेक्ट हो जाती है. तो आपके हिसाब से ऐसा क्या सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है IVF को लेके? The biggest misconception is that the people think that the IVF babies are different. They are artificial. They are not the same as the normal baby. But they are the same. IVF babies are the same. The only thing is different is the fertilization ka method, which is outside only. They are exactly, if it is your own biological child, it is the same. Only difference is then when you are taking the donor oocyte or the sperm. So then also you are carrying the baby for the 9 months. So the bond is still there. Right. And they do not have any extra birth defects which was previously thought. पहले जो सोचते थे. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन आज भी बहुत से इंडिया के पार्ट्स में IVF को लेके बहुत बड़ा स्टिग्मा और जजमेंट है. तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि लोग IVF को समझते कम है और जज ज़्यादा करते हैं, या उसका कोई और कारण भी हो सकता है? नहीं, जैसा कि आपने बोला, ऐसा जजमेंट अब तो पीपल आर चेंजिंग. इवन गांव से भी जो लोग आ रहे हैं ना, आजकल सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प करी है, तो वो भी तो हिंदी में पढ़ लेते हैं कि IVF क्या है. मिसकंसेप्शन होते हैं बट इट हैज़ हेल्प्ड. IVF अब सब लोग समझने लगे. पहले मुझे बहुत समझाना पड़ता था. आज से 20 साल पहले जितना मुझे समय लगता था समझाने में, अभी मुझे उतना समय नहीं लगता है. तो जो पेशेंट आते हैं वो वेल रेड आते हैं. काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं उनके पास और आई एम हैप्पी. मुझे अच्छा लगता है जब पेशेंट इंटरेक्टिव होता है और क्वेश्चन पूछता है. पहले बोलते थे आपकी मर्जी, जो मनाया आपका वो करो. अभी ऐसा नहीं है. अभी वो पूछते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों. सो IVF इज़ ईजीली अवेलेबल. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट एंड यू विल बी हैप्पी टू नो कि नाउ 90% लोग इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के जरिए बच्चे पा सकते हैं. दे कैन बिकम पेरेंट्स. सो इट्स ए ह्यूज अमाउंट, ह्यूज परसेंटेज. 10% तो फिर भी रहते हैं बिकॉज फर्टिलिटी में एक थर्ड फैक्टर गॉड का हमेशा रहता है. सो यू कैनॉट गिव एवरीथिंग टू एवरीवन जब तक कि ईश्वर की इच्छा नहीं हो. राइट. अब आपकी बात सुन के मेरे को एक कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में आया कि आज के टाइम में IVF का ट्रीटमेंट का प्रेशर ज़्यादा है या सोसाइटी का प्रेशर ज़्यादा है जिससे लोग फाइट ज़्यादा कर रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा. ये फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर ज़्यादा है. जो पुरानी अभी तक सासें हैं और जो, अगर आप गांव में रहते हैं
वो ज़्यादा ट्रबल करते हैं। पेरेंट जो कपल होता है ना, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, स्पेशली अगर सास है या नंद है या ये लोग, क्या हुआ। सो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि इस ट्रीटमेंट को जितना कम लोगों को इन्वॉल्व करो उतना ही अच्छा है फैमिली के लोगों को। तो सोशल स्टिग्मा तो अभी भी, अरे वो IVF बेबी है, तो लोग पीपल वांट टू हाइड इट। तो और फैमिली तो बहुत दुखी करती है, सबसे अधिक तो फैमिली दुखी करती है, मतलब कपल खुद से भी बहुत सपोर्टिंग होते हैं। तो फैमिली शुड बी सपोर्टिव। लेकिन अब पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो कितना पढ़े लिखे हैं और कितना IVF को समझते हैं, मुश्किल होती है। बट आने वाले समय में तो ये भी नहीं रहेगा, आई थिंक। आई गेस ये एक टॉपिक आज भी ऐसा है जो फैमिलीज ज़्यादा डिस्कस नहीं करती हैं, खासकर इनफर्टिलिटी का जो एक इमोशनल साइड होता है। एंड आई एम श्योर आप इतने सालों से आप ये इस इंडस्ट्री में हैं, इस फील्ड में हैं, आई एम श्योर आपने लोगों को, कपल्स को उनके वीकेस्ट मोमेंट में देखा होगा, लेकिन उन क्लोज्ड डोर्स के पीछे इनफर्टिलिटी की वजह से रिलेशंस पे किस लेवल तक का इम्पैक्ट आ जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी क्लोजली मैंने इन चीज़ों को देखा है। हम लोग इसीलिए फर्स्ट काउंसलिंग में ही इस चीज़ को जज कर लेते हैं कि आपस में कितनी बॉन्डिंग है। राइट। एंड वी ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज देयर बॉन्डिंग, क्योंकि ये जो एक जर्नी है ना, ये उन दोनों को मिलके करनी है डॉक्टर के साथ, एक बंदा नहीं कर सकता। सो माई मोटो वॉज ऑलवेज दैट I should not be, a person to break their marriage, right? Right. And IVF treatment should not be a cause to break. मेरा हमेशा ये एम रहता है कि मैं उनको बच्चा दे सकूं ना दे सकूं, they should come and emerge as a stronger couple. Right. That should be the role of a doctor, because it's a emotional journey, it's a painful journey. It's not that anybody can give the money to the doctor and doctor will give them the baby. No, that journey उनको खुद करनी है, वो जर्नी, और उसका हिस्सा बनना है हर स्टेज पे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर को बीइंग काउंसलर भी बनना पड़ता है। और इसलिए हमारे क्लिनिक में ये काफ़ी लोग मिलके ट्रीटमेंट करते हैं। एट एवरी लेवल दे नीड ए साइकोलॉजिकल काउंसलर विच इंक्रीज देयर बॉन्डिंग। True. That is very important because ultimately हम लोग बच्चा करते हैं, लाइफ में एंड तक कौन काम आता है? लाइफ पार्टनर। Correct. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड यू शुड, आपको कभी इस जर्नी में अपने लाइफ पार्टनर को नहीं खोना है। बच्चे को पाने की उम्मीद में अपने लाइफ पार्टनर को कभी मत खोइए, ये मेरा हमेशा उम्मीद रहता है। बिकॉज बच्चे तो चले जाएंगे, अगर पढ़ भी लिख लेंगे ज़्यादा तो भी चले जाएंगे। आप अभी बहुत खुश हो रहे हो, बाद में इट इज़ योर लाइफ पार्टनर विच गिव्स यू द हैप्पीनेस टिल द डेथ। That's so तो beautifully ये said. डॉक्टर की मेरी हमेशा ये वो रहती है, मैं हमेशा उनको बोलती भी हूँ कि तुम लोग हो एक दूसरे के लिए, when you both are for each other, why worry? If you have a baby, it's fine. If you don't have a baby, it's fine. Right. At least be happy together. That is बिल्कुल। very important. तो ये इमोशनल प्रेशर मेल्स पे ज़्यादा है कि फीमेल्स पे? दोनों पे होता है एक्चुअली, और फीमेल्स पे विजिबल होता है, वो रोने लगती हैं, और मेल्स को थोड़ा अपना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है और छुपाना पड़ता है। आई वॉज रीडिंग द ह्यूमन बीइंग का हिस्ट्री। तो जो मेल्स में क्यों मेल्स स्टेबल होते हैं? मेल्स स्टेबल इसलिए होते हैं कि उनको जो शुरुआत में भी फीमेल्स तो बच्चे पैदा करती थी शुरुआत में, एंड मेल्स जो थे वो उनको हर चीज़ के लिए फाइट करना पड़ता था, तो वो जेनेटिकली स्ट्रांग है, Right. Right. एंड दे सफर। बट अभी तो दोनों काम करना पड़ता है, अभी तो थिंग्स हैव चेंज, द मेल्स ऑल्सो हैव टू कुक, लुक आफ्टर द चाइल्ड एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक द जीन्स आर ऑल्सो चेंजिंग नाउ, एंड दे आर इमोशनल and they suffer emotionally definitely, but inside. मैम, आपको ऐसा लगता है क्या कि आज भी इंडिया में विमेन पे खासकर एक बहुत अनफेयर बर्डन ज़्यादा डाला जाता है, वो भी ऐसे टाइम पे जब लोगों को आज भी विमेन की बॉडीज़ के बारे में उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है? तो आपको क्या लगता है कि लोग क्यों इतना हिचकिचाते हैं ये होल रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात करने के लिए इंडिया में?
देखिए इंडिया में अभी भी प्रेगनेंसी नहीं होना एक स्टिग्मा तो है ही है, स्पेशली विमेन के लिए, स्पेशली विलेज एरिया में, और या पुराने लोग जो हैं अभी भी। आई हैड वन पेशेंट, उसका हस्बैंड को स्पर्म नहीं थे, एंजियोस्पर्मिया था। जी। उसने 2 शादियां तोड़ी एंड थर्ड शादी की, और तब उसने अपना टेस्ट कराया तो उसको पता चला कि वो बच्चे नहीं, ही हैड एंजियोस्पर्मिया, मतलब नो स्पर्म्स इन द सीमेन। तो यू नो कि फीमेल को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं समझना चाहिए, जी। ये समझना चाहिए कि शी नीड्स लव, इंटीमेट रिलेशनशिप एंड वार्मथ चाहिए उसको जीवन में, और उसके लिए भी तो कैरियर, फैमिली सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। बट वी शुड नॉट बर्डन हर, एंड ये नहीं देखना है कि अगर वो बच्चे नहीं पैदा कर रही है तो क्या रीज़न है। मतलब उसको फ्रीडम होना चाहिए अपने लिए क्या सोच सकती है। राइट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हाँ, फीमेल को ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि उसको कई सारे हार्मोन इम्बैलेंस झेलने पड़ते हैं, लाइक पीसीओएस, पोस्ट पार्टम ब्लूज एंड मेनोपॉज, एंड इतने सारे हार्मोन चेंजेस उसके अंदर होते हैं। तो उसको अपनी फैमिली और अपने हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए वो थोड़ी डिफरेंट है। राइट। देखिए विमेन को तो मेरे हिसाब से एक परमानेंट टैग मिल गया है इमोशनल होने का, लेकिन आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि मेन भी इमोशनली बहुत इवॉल्व हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप्स। तो एक कपल जो जिसमें दोनों ही लोग बहुत इमोशनल हैं, उनको ऐसे कौन से सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है जो उनको अभी नहीं मिल पा रहा? If both the people are very emotional, along with the fertility treatment they need a psychological counseling, because हमें हर ट्रीटमेंट के पहले कपल को तैयार करना पड़ता है Right. कि anything can happen. See, they have to be prepared for positive result, and if you do not prepare them for the negative result, so they will break down. तो it should not happen. हमें उनको दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना ही पड़ता है, चाहे वो इमोशनली अगर अनस्टेबल होते हैं और ज़्यादा, बिकॉज इट इज़ आवर ड्यूटी दैट द पेशेंट अगर कंसीव नहीं कर रहा है तो ही शुड नॉट और शी शुड नॉट ब्रेक डाउन। राइट राइट। उसका ध्यान हम पहले से ही रखते हैं, एंड वी ऑलवेज प्रिपेयर आवर पेशेंट्स फॉर दैट। एंड हमें डॉक्टर्स को भी इस ट्रीटमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, बिकॉज वी डील विथ नेगेटिविटी, वी डील विथ नेगेटिव रिजल्ट्स, सो वी हैव टू बी इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर दैट। राइट राइट। इनफैक्ट हम आजकल देख रहे हैं कि सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा एक तरह से रोल प्ले किया है अवेयरनेस स्प्रेड करने में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आज भी गलत हैं इंटरनेट पे जो लोगों को नहीं पता है या आधी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आपके हिसाब से ये सोशल मीडिया पे जो अवेयरनेस आज के टाइम में है वो एक अच्छे के लिए है या सीधे से मिसलीडिंग है? देखिए दोनों है, इट्स ए डबल एजेड स्वॉर्ड, यू नो। सो साइंस हैज़ एडवांस सो मच। सोशल मीडिया आजकल एक सेकंड में आप कुछ भी नया आ रहा है, एवरीबडी नोज। अगर कोई छोटा से छोटा इन्वेंशन आज लंदन में आता है तो पेशेंट लेके आ जाता है कि ये करिए, अभी इसको तो पता नहीं कि रिसर्च में। तो सोशल मीडिया इज़ वेरी हेल्पफुल, राइट। एंड इन अवेयरनेस, एंड डेफिनेटली काफ़ी हेल्प करता है। हमें थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ती है काउंसलिंग के लिए, बट मिसलीडिंग भी बहुत है, बहुत मिसकंसेप्शंस। लोग 100% गारंटी और क्या क्या बोलते हैं। तो मिसकंसेप्शंस के साथ जो पेशेंट आते हैं ना, उनको समझाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो ऐसा उनके दिमाग में भर जाता है, तो बोलते हैं ये तो देखिए ऐसा है। तो दोनों हैं, वी हैव टू हैव ए बैलेंस ऑफ बोथ। तो अगर ऑडियंस को कोई फेक मेडिकल एडवाइस के बारे में या एक फेक मेडिकल एडवाइस को आइडेंटिफाई करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए आपको ये देखना चाहिए कि जो भी बंदा बोल रहा है वो कितना ऑथेंटिक है, उसकी क्या डिग्री है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, एंड ये तो आप आजकल फाइंड आउट कर ही सकते हैं। सो द नॉलेज शुड गो फ्रॉम द साइंटिफिक एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसका साइंटिफिक बैकग्राउंड हो विद द क्लिनिकल एविडेंस। ऐसे रैंडम कि कुछ भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आजकल आता है, आई घर पे कर लो, और पता नहीं हर्बल मेडिसिन है ये ले लो, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, तो ये सही नहीं है। आपको भ्रांतियों को नहीं फैलाना है, लेकिन हमें भी जिम्मेदार बनना है, एंड वी शुड बी एबल टू कैच दीज थिंग्स, क्योंकि इंडिया में तो कोई रेगुलेशन है ही नहीं, कुछ भी लोग बोलते हैं। तो इट हैज़ टू बी बैलेंस, एंड वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल
एज ए सिटीजन, एज ए डॉक्टर, हमें भी जो बोलना है सिर्फ इसलिए नहीं बोलना है हमें कि पेशेंट आए हमारे पास, हमको इसलिए बोलना है कि पेशेंट तक सही जानकारी पहुँचे और उसको सही नॉलेज हो। राइट। जैसा भी आपने बोला कि रेगुलेशंस इंडिया में नहीं है, राइट, इसलिए शायद लोग आज के टाइम में रील्स देख के, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख के या वीडियोस देख के वो इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा सच मान लेते हैं एज़ कम्पेयर टू एन एक्चुअल मेडिकल कंसल्टेशन। तो एज सच अ सीनियर डॉक्टर, डज दैट रियली वरी यू? No, never. Because you know, the empathy that you give, I think the AI cannot give you. राइट। Everybody is now AI से थ्रू ही आते हैं, जो भी अब IVF करा रहे थे तो पढ़े लिखे वो नहीं है, तो उनके घर में कोई है, राइट। तो नॉलेज आती है, बट दे आर कन्फ्यूज्ड बिकॉज दे आर नॉट स्टडीड ना मेडिकल, तो इतना ज़्यादा नॉलेज है, सो दे गेट कन्फ्यूज, दे गेट ए डायरेक्शन, बट उनको फाइनल तो ट्रीटमेंट तो AI नहीं कर सकता ना, राइट। सो दे हैव टू कम टू अस। अभी देखिए कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं उनको AI नहीं रिप्लेस कर पाएगा। राइट। इट कैन गिव यू डायरेक्शन कि तुम IVF करा लो, इट कैन गिव यू डायरेक्शन कि ये डॉक्टर अच्छा है, बट अल्टीमेटली जो फाइनल जो जजमेंट है आपको देख के वो ओपिनियन तो डॉक्टर ही दे सकता है, एंड आई डोंट थिंक ए गुड डॉक्टर हु इज़ डूइंग एथिकल प्रैक्टिस शुड बी वरीड। राइट। राइट। तो ऐसी कौन सी ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन है जो आपको बहुत ज़्यादा डेंजरस लगती है आज के टाइम में? सबसे पहले तो यही कि ये हर्बल टैबलेट ले लो तो 100% गारंटी है, ये जो 100% पेशेंट भी आएंगे बोले वो तो सेंटर ना 100% गारंटी देता है। भाई लाइफ एंड डेथ का कोई कैसे गारंटी दे सकता है? इट्स क्रिएटिंग लाइफ, इट इज़ नॉट ए डिजीज़। गॉल ब्लैडर थोड़ी ना है कि कोई निकाल देगा, इट्स क्रिएटिंग लाइफ, इसकी कोई 100% गारंटी नहीं दे सकता। तो आप इन झांसे में नहीं फंसना चाहिए आपको। किसी भी सेंटर का आप एक्सपीरियंस देखिए, सक्सेस रेट देखिए, और तभी आप एक रील पढ़ के आप कुछ नहीं करने। आजकल एक रील आ गया, ये डिटॉक्स वाटर है, पता चला सारे लोग डिटॉक्स वाटर बना रहे हैं। तो वी आर सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल मीडिया, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। इसका कहीं ना कहीं कोई बैलेंस हमें ढूंढना है, एंड एज ए रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर वी हैव टू गिव रियल इन्फॉर्मेशन आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन टू द पेशेंट। इंडिया में हम लोग देखें तो बहुत सारे सुपरस्टिशंस पे चलते हैं आज, खासकर जो पुरानी जनरेशन्स हैं हमारी। तो आई एम श्योर एज अ डॉक्टर ऐसे मोमेंट्स भी रहे होंगे जहाँ पे आपने बहुत चीज़ों के लिए डिसएग्री किया होगा क्योंकि वो सिर्फ एक ट्रेडिशनल बिलीफ है, वो सच नहीं है या मेडिकली आउटडेटेड होगा, राइट, स्पेशली फॉर विमेन। जैसे कि होता है बहुत जगहों पे कि आप इस मंदिर में चले जाइए और यहाँ इस माता के सामने हाथ जोड़िए या इस भगवान के सामने हाथ जोड़िए और सब सही हो जाएगा। देखिए ये जो बिलीफ है ना, यही तो आपको पैदा करना है। अगर डॉक्टर ने पेशेंट के अंदर ये फेथ डेवलप कर दिया तो उसको किसी मंदिर की ज़रूरत नहीं होती। राइट, यू अंडरस्टैंड? करेक्ट। तो जो फर्स्ट विजिट होता है डॉक्टर का, जी, फर्स्ट 2 to 3 विजिट्स गोज इन गेटिंग ए कनेक्शन मेड, एंड अनलेस दैट कनेक्शन इज मेड द ट्रीटमेंट कैन नॉट फ्लो। यू अंडरस्टैंड? राइट। सो अगर उसको मंदिर में जाने से खुशी मिलती है वो ट्रीटमेंट के साथ ज़रूर मंदिर में जाए, बट सिर्फ मंदिर में ना जाए। अगर उसको तो आई ऑलवेज टेल ऑल पेशेंट्स टू डू मेडिटेशन, राइट, because you have to connect to doctor and you have to connect to the supreme power also. राइट, You understand? राइट, बिल्कुल। and जब वो पेशेंट इन दोनों से कनेक्ट हो जाता है तो उसकी प्रेगनेंसी हो जाती है। आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हु कम टू मी विद द बिलीफ कि डॉक्टर आई नो कि मैं आपके पास आई हूँ और आपसे बच्चा लेके ही जाऊँगी, और वो लेके जाता है। जो ये बोलते हैं पता नहीं होगा, नहीं होगा, क्या होगा, ऐसे क्यों होगा, उनको नहीं मिलता। सो सबसे पहला जो चीज़ होती है ना वो फेथ एंड टू सरेंडर, फिर उसके बाद सरेंडर। राइट, कितना भी आपके पास नॉलेज हो, ठीक है, अनलेस यू सरेंडर यू कैन नॉट बी हील्ड। यू हैव टू सरेंडर टू योर बिल्कुल, डॉक्टर, बिल्कुल। यू हैव टू सरेंडर टू गॉड। हमने आज भी बहुत घरों में, खासकर मैंने आसपास के घरों में बहुत जगह देखा है कि विमेन की हेल्थ को बहुत सीरियसली लेने की जगह उनको बोला जाता है कि नहीं ठीक है तुम एक औरत हो, ये तो होता ही है, हमने भी देखा है ये टाइम, हमने भी ऐसा झेला है। तो क्या आज भी विमेन की हेल्थ को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है? देखिए ये जो आप बात कर रही हैं ना,
ये पुराने उन्हीं के फैमिली की किसी लेडी की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब पुराने ज़माने में तो 10 बच्चे होते थे, 2 बचे, 3 ख़त्म हो गए, 4 अबॉर्शन हो गए। बट अभी वो सिनेरियो नहीं है, लोगों के 2 ही बच्चे होते हैं, बल्कि इनफैक्ट अब तो 1 ही हो रहे हैं, राइट। और वो भी उनको हेल्दी चाहिए, एंड दे डोंट वांट एनी अबॉर्शन। सो एवरी प्रेगनेंसी इज़ ए वेरी प्रीशियस प्रेगनेंसी। तो ये जो थॉट है, अब धीरे धीरे आई एम हैप्पी कि ख़त्म हो रहा है, एंड वी हैव टू अवॉइड। अगर कोई बहुत सीनियर घर में बोल भी रहा है तो वी हैव टू ओवरलुक, क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग हैं, इतना तो समझते हैं, हम उनसे मिसबिहेव भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें इन चीज़ों को ओवरलुक करना है, और वी हैव टू लिसन टू आवरसेल्फ एंड टू द डॉक्टर्स। आज भी हमने नोटिस किया है कि बहुत सी विमेन हैं जो अपनी हेल्थ को फैमिली के बाद प्रायोरिटी देती हैं, राइट। उसके अगेंस्ट आपके हिसाब से क्या कोई अवेयरनेस बढ़ी है? क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो बहुत हैं, लेकिन सही अवेयरनेस होना, सही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होना और उसको इम्प्लीमेंट करना, वो भी उतना ही ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ विमेन, एंड एक विमेन ही घर के डाइट चार्ट से लेके और सारी चीज़ों को मैनेज करती है। तो इसलिए अगर विमेन हेल्दी है और हेल्थ अवेयरनेस है, तो उस फैमिली में सारे लोग हेल्दी होंगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी यूज टू कंडक्ट मेनी हेल्थ प्रोग्राम्स फॉर विमेन फॉर देयर अवेयरनेस। एंड इफ़ यू कहा जाता है कि इफ़ यू वांट टू रियली मूव द नेशन, यू हैव टू मूव ए विमेन। एक विमेन को आप हेल्दी बनाइए तो एक फैमिली हेल्दी बनती है, एक है फैमिली हेल्दी बनती है तो एक सोसाइटी हेल्दी बनती है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक कि विमेन आर बिकमिंग कॉन्शियस, दे शुड गेट द रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, राइट। एंड दे शुड गो टू द डॉक्टर इन टाइम। आप डेली बेसिस पे पता नहीं तो कितने लोगों से मिलती होंगी, ऐसी कुछ इमोशनल चीज़ बताइए जो लोगों के हिसाब से मदरहुड ने ज़्यादा सिखाई है दैन मेडिसिन ने। देखिए, यहाँ पे मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगी। What made me to become a doctor? I didn't want to become a doctor. Oh. Yeah. And one incident, and I decided that I have to become a doctor. My father was very ill. उनको लू लग गई थी, and he was almost unconscious at home. And he was not. We were only me and my mother at home, and we were not able to carry him to the hospital. And 2 घर छोड़ के एक डॉक्टर रहता था, उसके पास हम गए, तो वो ही वॉज नॉट रेडी टू कम टू माई हाउस, है ना। एंड बिकॉज उसको पता था कि मैं मेडिको हूँ और मुझसे पैसा वो ले नहीं सकता, ले लेना चाहिए था। मैंने तो बोला इफ़ यू वांट टू चार्ज यू चार्ज, बट वो आया नहीं, और हमें किसी तरह से अपने फादर को लेके वहाँ जाना पड़ा। सो दैट डे आई डिसाइडेड दैट आई विल बिकम ए डॉक्टर, एंड आई विल नॉट बिकम ए डॉक्टर लाइक हिम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आई विल नॉट सी द मनी। अगर पेशेंट सीरियस है तो मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ना, आई हैव टू गो एंड सी द पेशेंट। राइट। ऑल्दो आपका ये थॉट एक बहुत ही इमोशनल एंगल से आता है, बट एज ए डॉक्टर क्या आप जेन्युइनली अपने इमोशंस को अपने प्रोफेशन से अलग कर पाते हैं? पहले तो बिल्कुल नहीं कर पाती थी, और अगर एक पेशेंट सीरियस होता था तो मैं उसके पास ही बैठी रहती थी, घर ही नहीं जाती थी, खाना भी नहीं खाती थी। तो ये भी एक जर्नी है जो धीरे धीरे, आप हंसींगी सुन के, कि जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, अगर कोई पेशेंट सीरियस हो जाता था तो मैं सोचती थी, हे भगवान, मेरी में से एज में से ना इसको थोड़ी सी दे देना, इसको बचा लो तुम। तो वो आई वॉज वेरी इमोशनल। और उसके बाद जब मैंने IVF शुरू किया, तो IVF तो एक पूरी जर्नी है जो कि आपको पूरा सिखाती है इमोशन, क्योंकि आफ्टर एवरी नेगेटिव रिजल्ट वी आर ब्रोकन। पेशेंट तो जो ब्रोकन है, आप ब्रोकन हो, आपको पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, एंड येट यू हैव टू बी बैलेंस। तो वो जो नेगेटिव को एक्सेप्ट करने की आदत नहीं थी मेरी बिल्कुल भी लाइफ में पहले। IVF के बाद वो चीज़ को मैंने सीखा कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जीवन का एक हिस्सा है, एंड यू हैव टू बी बैलेंस। पेन इज़ देयर, पेन तो होता है। अभी मैं बताऊँ, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पेशेंट है, शी हैज़ नॉट कंसीव्ड, एंड आई नो शी इज़ इन पेन, आई हैव टू काउंसिल हर। बाकी सारे पेशेंट कंसीव कर गए, वो अभी नहीं कंसीव किए, फर्स्ट अटैम्प्ट था। बट ये पेन तो है ना, आज भी मेरे अंदर है, और मैं जब मौका मिलता है तो उसके बारे में सोचती हूँ कि मुझे उसको कैसे पॉजिटिव करना है। तो बीइंग ए IVF डॉक्टर हैज़ टॉट मी मेनी थिंग्स। डॉक्टर तो बनना बहुत कुछ सिखाता ही है। यू डोंट हैव योर पर्सनल टाइम,
you don't have your family time. I think for everything you have to sacrifice. अगर आपको जीवन में कुछ भी करना है तो सेक्रीफाइस तो बनता है या करना तो पड़ता है. लेकिन IVF ट्रीटमेंट ने बहुत कुछ सिखाया है. IVF में कुछ पता नहीं होता. पेशेंट के पास बहुत अच्छा ओवेरियन रिजर्व है, पता नहीं अच्छे अंडे मिलेंगे कि नहीं. नेक्स्ट डे वो फर्टिलाइज होंगे कि नहीं, डोंट नो. नेक्स्ट डे वो एम्ब्रियो बनेंगे कि नहीं, वी डोंट नो. और उसके बाद इम्प्लांट होंगे कि नहीं, स्टिल वी डोंट नो. सो इट्स अ जर्नी जहाँ पे एंड जो है अननोन है. पता नहीं है कि हम डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे. कितनी लंबी जर्नी है ये नहीं पता. तो ये आपको सरेंडर होना सिखाता है. आई हैव टोटली रिमेन सरेंडर टू द ऑलमाइटी एंड आई ऑलवेज प्रे टू हिम फॉर द हेल्थ of all my patients. Wow, that's so sweet. In today's time, we are seeing more and more women become successful professionally, right? And you yourself, being a working professional, you've managed your emotions, you've managed your education, a leadership role, all simultaneously. But do you think women still carry the guilt of prioritizing their careers despite having achieved so much over their parenthood? You should not have guilt. You should never carry any guilt. You should do your all the roles of wife, of mother. A woman has to do multi-talented, multitasking roles. Right. You have to be mother. You have to be a family person. You have to be a doctor. I have to be the CEO of the hospital also. I have to look after my staff also. So you have to be balanced. Right. तो इतने साल से जो आप इस फील्ड में हैं, इसने आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया है या कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया है? आई हैव इवॉल्व्ड एज ए पर्सन. आई हैव डेफिनेटली इवॉल्व्ड. आई एम नॉट द व्हाट आई वाज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड. आई यूज्ड टू हैव मेरा टेम्पर बहुत जल्दी लूज़ हो जाता था. ये मैंने सीखा है जब आपको बहुत कुछ संभालना होता है, जब आप रिस्पॉन्सिबल सीट पे होते हो. मुझे लगता है कि जो मैं हूँ आज, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई पेशेंट्स. एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि माई पेशेंट्स आर माई हीलर्स. आई मे बी देयर हीलर्स बट दे आर माई हीलर्स. राइट. बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ड्राइविंग फोर्स वाई आई कम टू द हॉस्पिटल. आई हैड टफ मोमेंट्स इन माई लाइफ when I didn't want to do anything. But when I come to my clinic and when I see one patient has come from Mumbai and one patient has come from Delhi and one patient has come to me 17 years after having, जब वो बच्चों को लेके आते हैं. और when I go to Bhubaneswar airport and there is a somebody comes and touches my feet कि this is your baby. And now he is studying, finished the engineering. Right. And most touching was when one patient called me from Gurgaon and she found my number from somewhere, I don't know. 21 years back I delivered her. Oh. And she called me with so much of love that doctor, there is not even a single day when we don't remember you. That's so sweet. And her daughter, she is in film production. She wants to meet me. So these are the moments when you see the love in your patient's eyes. True. And they really love me. So this is the most important driving force for me to continue my working, to make my life worthwhile, and to persist me to continue my journey. I'm sure after hearing this, I realize your journey has been a huge roller coaster. हमने देखा बहुत लोग सक्सेसफुल हॉस्पिटल्स तो देखते हैं, लेकिन सिर्फ बाहर से. उसको बिल्ड करने में, वो एक फाउंडेशन स्टैब्लिश करने के पीछे जो एफर्ट्स गए हैं, जो इमोशंस लगे हैं, जो प्रेशर रहा है और लेवल्स ऑफ प्रेशर मैं कहूँगी, वो उनको नहीं पता. तो एज अ को-फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ जीवन ज्योति हॉस्पिटल्स, आपके लिए पर्सनली क्या चैलेंजिंग मोमेंट्स रहे हैं सबसे ज़्यादा? टू स्टार्ट विथ, माई हस्बैंड मेड दिस हॉस्पिटल. दैट टाइम माई रोल वॉज वेरी लिमिटेड, एंड वी जॉइंटली रन इट. हमने साथ साथ चलाया. टिल ही वॉज देयर, माई रोल वॉज ओनली कन्फाइंड टू IVF.
राइट। लेकिन आईवीएफ शुरू करने में भी मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने 92 में आईवीएफ की ट्रेनिंग ले ली थी, जबकि इंडिया में सिर्फ 3-4 जगह पे ये आईवीएफ था। जो आज इंडिया में जो लीडिंग आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग ली थी। बट इट टूक मी टाइम इवन टू मेक माई हस्बैंड अंडरस्टैंड। उनको समझाने में मुझे बहुत वक्त लगा, 92 से लेके 99 सबको बताने में कि आईवीएफ कोई ट्रीटमेंट है और वो होता है, सक्सेसफुल है। उस समय एक एक चीज़ मुझे खुद से बतानी पड़ती थी। तो इट टुक मी सो मेनी एंड आई वाज सो परसिस्टेंट कि मुझे तो आईवीएफ करना ही है। व्हाई? बिकॉज मैं हमेशा से ना, मुझे चैलेंजेस पसंद है। राइट। मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जो कि डिफरेंट है, जो कि नहीं हो पा रहा है। एंड आईवीएफ में ये चैलेंज था। मैं इनफर्टिलिटी तो ट्रीटमेंट तो 32 साल से कर रही हूँ। राइट। तो 37 ईयर्स हॉस्पिटल को हो गए। मैंने प्रैक्टिस शुरू की उसके 3-4 साल बाद से। तो पेशेंट आते थे, अब मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाती थी। तो मुझे लगा कि आईवीएफ कर सकते हैं। मल्टीपल ट्रेनिंग ली। 99 में अल्टीमेटली व्हेन आई पुट माय फुट डाउन, माय हस्बैंड वाज नॉट एग्री इन द बिगनिंग। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कोई कि आईवीएफ क्या चीज़ है। तो 99 में फिर मैंने आईवीएफ खोला। तो भी मेरा जो रोल था हॉस्पिटल में, इट वाज ओनली लिमिटेड टू माय गायनी डिपार्टमेंट। राइट। ठीक है, आई वाज नॉट मैनेजिंग द एंटायर शो। That my husband was managing. When he was not there in 2017, suddenly the whole burden came to me. So my role was not only limited to now, only as a IVF specialist, only as a gynae. I had to look after this hospital, and I have to tell you, to save this hospital, I have operated on the very 5th day of my husband's death, in the same OT in which he lost his life, because I know he was very close to this hospital and his soul still remains here, and this hospital is also very close to my heart, so I can do anything to save this. So, and then that changed my life, because as a woman I had to face many obstacles. Staff were not ready to listen to me, एंड उन्होंने सोचा कि ये तो एक विमेन है, ये कितने दिन चलाएंगे, अल्टीमेटली तो हॉस्पिटल बिक ही जाएगा। तो उस डिफ़िकल्टी को भी मुझे वो करना पड़ा, राइट। और पास ऑन करना पड़ा। देन धीरे धीरे पीपल हैड कॉन्फिडेंस इन मी, एंड आई कैन से नाउ दैट द होल स्टाफ हैज़ Right. कॉन्फिडेंस इन मी, एंड दे थिंक दैट आई एम एबल टू रन दिस हॉस्पिटल। दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। एंड इसको करने के लिए मुझे अपने अंदर बहुत से चेंजेस लाने पड़े। That is why I told you I evolved as a human being and person. जो मैं आज हूँ वो नहीं थी पहले, और शायद अगर इतने ऑब्स्टिकल नहीं आते तो ये इवोल्यूशन भी नहीं होता। कभी न कभी मैं अपनी लाइफ जर्नी पे भी एक बुक जरूर लिखूँगी, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो ए जर्नी अदर देन द फर्टिलिटी जर्नी। माई पर्सनल लाइफ इज़ ऑल्सो ए जर्नी। बट डेफिनेटली आप जो सोचते हो वो होता है, आपको विजुलाइज करना होता है, एंड कि आपको ये करना है। अगर आप सच्चे दिल से चाहते हो तो आप उसको करते हो। मैं हर समय, आई स्टिल टुडे, आई ब्रीथ दिस हॉस्पिटल, आई सी दिस हॉस्पिटल इवन इन माई ड्रीम, एंड आई थिंक अबाउट दिस हॉस्पिटल कि व्हाट आई हैव टू डू। मैं एक पल के लिए भी इससे दूर नहीं हो पाती। दैट इज़ माई लाइफ एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट इट। I mean, I don't know what to say here. बस मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगी रादर कि आप अपनी पर्सनल जर्नी बिल्कुल लिखिएगा, बिकॉज आई एम श्योर इट विल एक्ट एज अ ट्रू मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली young women who are aspiring to become doctors. I mean, I don't know, I'm running out of words right now. अभी हम थोड़ी देर पहले कुछ मिथ्स के बारे में बात कर रहे थे जो आईवीएफ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। एक ऐसी मिथ क्या होगी जो आप परमानेंटली हटा देना चाहती हैं? जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक सबसे बड़ा मिथ तो है कि कुछ लोग सोचते हैं कि आईवीएफ चाइल्ड इज़ डिफरेंट, बट आईवीएफ चाइल्ड इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। द ओनली मेथड ऑफ कंसेप्शन इज़ डिफरेंट। एंड द सेकेंड कि लोग सोचते हैं आईवीएफ 100% सक्सेसफुल है। इट इज़ नॉट। इवन आईएएस बनने के लिए भी आपको 3 बार एग्ज़ाम देना पड़ सकता है ना, तो आईवीएफ के लिए भी आपको अटेम्प्ट लगते हैं। कोई भी चीज़, अगर आप चांद पे पहुँचे तो एक बार में तो नहीं पहुँच गए थे।
एनीथिंग वेयर इम्पॉसिबल, मैं यही कहती हूँ कि जहाँ अंधेरा है आप वहाँ रोशनी करने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ उजाला है वहाँ नहीं आप कोशिश कर रहे हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार में ही उजाला कर लिया, हो सकता है कि आपकी लौ बुझ गई हो, फिर से जलाना पड़ेगा। तो यू हैव टू ट्राई एंड कीप ट्राइंग। राइट। When you keep on trying, you become successful. And even if you're not, but आपको ये तो रहता है ना कि आपने सक्सेस काम तो किया ना अपना। बिल्कुल। देखिए, ये कोई नहीं याद रखता कि कौन जीता और कौन हारा। दुनिया ये याद रखती है कि आपने लड़ाई कैसे लड़ी। अगर आपने अपना सब कुछ अच्छे से किया है, पेशेंट ने, उसको सेटिस्फैक्शन तो होता है ना कि उसने जो भी साइंस है आज उसने ट्राई किया। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, स्टिल बी हैप्पी, बी हेल्दी, लव योर पार्टनर and have a good life. There are many other things. You can adopt a child, राइट। but don't be disheartened. वंडरफुल। हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको जो पहला थॉट आपके माइंड में आता है आप वो बताइएगा। एक ऐसी चीज़ जो इंडियन हस्बैंड्स को अपनी वाइफ्स की बॉडीज़ के बारे में जानना चाहिए ज़रूर से। Empathy, they have to be there. Emotionally, they have to be there. आज के टाइम में जितने भी वेलनेस ट्रेंड्स चल रहे हैं उसमें से सबसे ओवररेटेड ट्रेंड कौन सा है आपके हिसाब से? Overrated, आजकल ये जो पिल्स आ रहे हैं, ढेरों पिल्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, तो यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज वन ऑफ देम कैन डैमेज योर किडनी. सो वेलनेस इज गुड, longevity is good, but you have to be careful. True. One habit that every woman should start before the age of 30. Strength training, because lifestyle, diet and the lifestyle, वो मैंने पहले भी बोला, 30 के पहले बदल लो. अगर 50 साल तक आपको ब्लड प्रेशर और शुगर नहीं हुआ, यू कैन लिव अप टू 80 ईयर्स. आप 80 साल तक जी सकते हो. और बूढ़ा आपको ओल्ड एज में ही तो जीवन जीना है. आप तो यू आर हैविंग ए सेकेंड लाइफ. सब लोग तो घूमते हैं बाहर की कंट्री में, तो कितना घूमते हैं. तो आपको अपना फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ सब बचा के रखना है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो चला जाएगा, उसको तो एक एज के बाद आप नहीं बचा सकते. तो फाइनेंशियली ऑल्सो यू शुड बी साउंड एनफ टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. True. What would be one thing that you think to become a successful doctor you need to sacrifice silently? You have to balance. As I told you, successful doctors have to sacrifice something. But if you take your profession as a passion, take your profession as a passion, that is, then you will never be tired, and you will not have that guilt that family ने आपको ने sacrifice किया. Give quality time to your family. It is not important. आजकल तो वीडियो है, आजकल तो आप you can be there. If you are there emotionally, if you are there in difficult times, they will not say that, my children cannot say that I have neglected them. I was always there. One thing that you wish young doctors understood in their earlier stages. Yeah, I have seen most of the doctors, they do not look about their personal health. जो स्पेशली अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं, दे स्मोक, दे ड्रिंक, दे डू नॉट कीप टाइम टू देयर फैमिली. तो अल्टीमेट हैप्पीनेस ना कम्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स. इवन इफ यू आर वेरी सक्सेसफुल, यू वोंट बी हैप्पी इफ यू हैव रियली नेग्लेक्टेड योर फैमिली. Right. So you have to keep a balance. So my appeal to the young doctors are that they should keep a balance between the family life, personal life and their profession. ये ना जिंदगी में बैलेंस ही सब कुछ है. आपको सब कुछ है, बट यू नीड टू टाइम एवरीथिंग. ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ प्रोफेशन ही कर रहे हैं एंड फैमिली इज थॉरोली नेग्लेक्टेड. इन योर ओल्ड एज यू विल बी मिजरेबली अनहैप्पी. Right. बिकॉज पेशेंट नहीं होंगे उस समय, आपके पास आपकी फैमिली ही होगी. तो इसलिए कीप ए बैलेंस. और सबसे इम्पॉर्टेंट, गिव टाइम टू योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. डॉक्टर, वंस आई वेंट इन ए सिम्पोजियम इन लॉस एंजलिस. Right. तो वहाँ पे एक लेक्चर था, डॉक्टर्स हील दाई सेल्फ. सबसे पहले डॉक्टर्स को अपने हेल्थ को ठीक करने की ज़रूरत है. हैव ए रूटीन. यू कैन गिव ऑपरेशन का टाइम नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे, है ना. यू कैन कीप ए कलीग टू हैंडल इमरजेंसीज.
बिल्कुल बिल्कुल. Okay, now the most important question. What is it, that one thing that the society needs to stop telling all those women who want to go for an IVF treatment? इसका बहुत सीधा आंसर है, डू नॉट लिसन टू द सोसाइटी. यू कैन नॉट स्टॉप द सोसाइटी. सोसाइटी तो हमेशा ही कुछ बोलेगी, आप अच्छा करोगे तो भी बोलेगी, बुरा करो. एंड दिस इज़ समथिंग वेरी पर्सनल, एंड आई विल नॉट एडवाइज कि आप अपना ट्रीटमेंट किसी से डिस्कस करें. यू शुड ओनली डिस्कस योर ट्रीटमेंट विद द डॉक्टर. एंड द फैमिली में भी बहुत लिमिटेड लोगों से आपको जो लगता है, आपको जो अंडरस्टैंड करता है या वेल विशर है, मोस्टली हस्बैंड वाइफ को ही शेयर करना चाहिए. एंड आई डोंट थिंक यू कैन स्टॉप द सोसाइटी. दे विल स्पीक वट एवर यू डू. डॉक्टर, हमने नोटिस किया है या हमने कई बार सुना है कि लोग आज भी एक बेटे की चाह में अपने डॉक्टर्स को जेंडर प्रेडिक्शन के लिए अप्रोच करते हैं. उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ हूँ और हमारी भारत सरकार भी बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ है. तो IVF से लड़का या लड़की नहीं होती, IVF से बच्चे होते हैं. दैट कैन बी बॉय, इट कैन बी गर्ल, सो इट कैन बी बोथ. सो एंड यू शुड बी वेलकमिंग टू बोथ. इतनी ट्रीटमेंट के बाद आपको एक बच्चा हो रहा है. सो आई थिंक द बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर्स. तो जब आप भगवान को सरेंडर कर रहे हैं तो जो वो दे रहा है वो आपको मंजूर होना चाहिए. एंड इट शुड बी टोटली कंडेम. एंड आजकल लड़कियां किस मायने में लड़कों से कम हैं? मुझे तो लगता है जिनकी लड़कियां हैं वो ज़्यादा सुखी हैं. अगर आप देखिए, पेरेंट्स से पूछिए. वी आर 4 सिस्टर्स ओनली, एंड आई थिंक माई पेरेंट्स वेर वेरी प्राउड ऑफ मी. हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है. इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आपके हिसाब से IVF का क्या फ्यूचर है? देखिए, IVF में बहुत तेज़ी से स्टेम सेल आ रहा है. अभी ये रिसर्च वर्क में है, बिकॉज जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होता है, इट इज़ टोटीपोटेंट, इट कैन मेक एनी ऑर्गन, एनी सेल. तो लेकिन इस पे तो अभी रिसर्च वर्क में ही है. दिस इज़ टोटली प्रोहिबिटेड टू मेक फर्दर रिसर्च इन इंडिया एंड ऑल्सो इन एब्रॉड. लेकिन आने वाले समय में इंड्यूस्ड स्टेम सेल से आपके बॉडी के एक सेल से लैब में स्पर्म बन जाएगा, दूसरे सेल से एग बन जाएगा, एंड यू कैन हैव ए बेबी विदाउट ए पार्टनर. सो दैट मे बी. और जो हम इंक्यूबेटर में बच्चे को रखते हैं, ये एम्ब्रियोज को रखते हैं, और जो 9 मंथ बच्चा अंदर रहता है, वो शायद वो भी वो बना रहे हैं. देयर आर कंपनीज इन US कि वो ऐसा इन्वायरमेंट बना रहे हैं कि पूरे 9 महीने भी हो सकता है बच्चा वहीं रहे. तो देखिए, मैरिज की तो इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है. और बच्चा पैदा करना भी लोगों ने कम कर दिया है, क्योंकि आपको शायद जानकारी नहीं हो, टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया हैज़ ऑल्सो रिड्यूस. जबकि हमारी इतनी पॉपुलेशन है, इट इज़ 1.9, जबकि रीबैलेंस होने के लिए इट शुड बी 2.1. तो ऑलरेडी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो ऑलरेडी बच्चे कम पैदा कर रहे हैं और या कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिलेड मैरिज. सो दैट इज़ वाई पीपल आर सीकिंग मोर एंड मोर IVF ट्रीटमेंट. बट फ्यूचर में तो बहुत कुछ होने वाला है. एज आई टोल्ड यू, यू कैन हैव ए बेबी विथ योर विदाउट ए पार्टनर, एंड योर बेबी कैन ग्रो इन द लैब ओनली. यू डोंट नीड ए यूट्रस. तो ऐसे में आपने शुरू में एग फ्रीजिंग का भी एक ऑप्शन दिया था इसी टॉपिक रिलेटेड, तो वो तो एक ऑप्शन हो गया, बट उसके अलावा लोगों को और क्या ऐसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए? देखिए, ये जो लड़कियां आजकल बहुत एडवांस हो गई हैं वो सही है, यंगस्टर्स. लेकिन आजकल जो जब से ये कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप अलाउ कर दिया है, यंगस्टर्स में लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है. आई एम नॉट अगेंस्ट लिव इन रिलेशनशिप, बट अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो आपको प्रॉपर कंट्रासेप्शन का नॉलेज होना चाहिए. गो टू द डॉक्टर, फाइंड सम कंट्रासेप्शन, एंड डोंट बिकम प्रेग्नेंट व्हेन यू डोंट वांट टू. एंड don't come to the doctor with the first pregnancy का abortion, because it can create infertility later on in the future, और आपको IVF की ज़रूरत पड़ सकती है. तो ये तो हम खुद से एक अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को खुद से ख़राब कर रहे हैं. तो ये तो बिल्कुल भी प्रिवेंट किया जा सकता है ना. तो हमें एडोलेसेंस को नॉलेज पहुंचानी है कि कंट्रासेप्शन यूज़ करें, सेफ़ कंट्रासेप्शन यूज़ करें, जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी भी ना हो और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ भी ना हो, क्योंकि वो दोनों बढ़ रही हैं. तो आई एम वेरी
touched by this, so I thought this topic should be covered. Definitely, it's very important to spread the right kind of awareness. We'll go for one last thing which I am very curious to know कि सालों बाद जब कोई डॉक्टर वंदना बंसल को याद करे तो क्या चीज़ है जो आप चाहेंगे कि वो आपको किस चीज़ के लिए याद करें? For the treatment or for the care which I have given, and they remember me. Once I remember I went in some place and एक patient आया और उसने सबके सामने बोला कि ये डॉक्टर वंदना बंसल है, ये लोगों की ज़िंदगी बदल देती हैं. Right. So I think I want to be known as a healer, not as a god. I am also a human being. So I just want to be known as a good human being, as a honest doctor, and I'll be very happy to for that. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. डॉक्टर बंसल के साथ की हमारी आज की ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ हेल्थ केयर सिस्टम्स के बारे में नहीं थी. ये एम्पथी, विमेंस हेल्थ, इमोशनल स्ट्रेंथ और इंसानियत के बारे में भी थी. थैंक यू सो मच डॉक्टर बंसल फॉर not just sharing your expertise but also sharing your emotions, your experiences and your perspective. Thank you very much for this very nice conversation on such an important topic, that is the women health and infertility, which is very close to my heart, and looking forward for any such more conversations in the future.